तो अब मैं गनाश बना रही हूँ जो ट्रफल चॉकलेट के फिलिंग में यूज होगा। नाउ बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर चॉकलेट एंड क्रीम। तो ये है डार्क कंपाउंड और ये है फ्रेश क्रीम। आई एम यूजिंग अमूल फ्रेश क्रीम। नाउ इसका जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा कि आप अंदर का जो फिलिंग है वो कितना फ्लोई चाहते हो। So the ratio of chocolate to cream will depend on how flowy you want the filling to be. Now understand one thing, the more flowy you make the filling, the more you have to maintain the temperature while storing the chocolate. तो ये जो filling है, आप जितना इसको flowy बनाओगे, स्टोरेज के टाइम आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। If your filling is too flowy, then all time you have to keep the chocolate in a chilled condition. अगर आपका filling flowy होता है तो चॉकलेट को all time आपको chilled condition में रखना होगा, right? So in summer it is always better to go for ratio 2:1. In the sense 2 parts chocolate 1 part cream. समर में बेटर होता है अगर आप 2 parts chocolate और 1 part cream लेते हो। Winter you can make it little more flowy by decreasing the chocolate. तो ये जो रेशियो है इसमें चॉकलेट का क्वांटिटी जितना कम होगा, क्रीम जितना ज्यादा होगा, it will be more flowy, right? So in this ratio, as you reduce the chocolate and increase the cream, it becomes more flowy. तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 grams chocolate and 100 grams fresh cream. Butter is entirely optional. This is used to enhance the taste. तो ये है salted butter, अमूल का salted butter, और ये सिर्फ टेस्ट के लिए है और मैंने लिया है 30 grams. Process is, first I will melt the chocolate in the microwave. Then separately I will heat the cream and mix. तो मैं पहले चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करूंगी, फिर क्रीम को गर्म करके इसके साथ मिक्स करूंगी। अगर आपका चॉकलेट थोड़ा पुराना है, इसमें मॉइस्चर लग गया है, तो आप क्रीम को चॉकलेट में लेके दोनों एक साथ गर्म कर सकते हो। नाउ सपोज योर चॉकलेट इज अ बिट ओल्ड, इन दैट केस यू टेक द क्रीम इन द चॉकलेट एंड हीट इट टुगेदर। But whatever is the case, you will heat for 30 seconds, take out, stir and then again 30 seconds. तो आपको 30 सेकेंड हीट करना है, बाहर निकाल के स्टर करना है, फिर 30 सेकेंड गर्म करना है। So I am melting the chocolate. I will also heat the cream till it is hot to touch. तो क्रीम को ऐसे टच करने से हॉट फील होगा, उतना तक मैं इसको गर्म करूंगी। ओके। बटर इज रूम टेम्परेचर सॉफ्ट बटर। सो बटर को सेपरेटली मेल्ट नहीं करना है। चॉकलेट हैज मेल्टेड, नाउ एडिंग द बटर। हीटेड द क्रीम, क्रीम को गर्म करके इसमें मिक्स कर रही हूं। क्रीम शुड बी हॉट टू टच। मिक्स जेंटली, विगरसली मिक्स नहीं करना है। ओके। Lastly, I'm going to strain this. Okay, so this is done. अब ये थोड़ा सा सेट होगा, so I will keep it in the fridge for some time till it is paste consistency. So ये paste consistency में आएगा. Then I will take it in a piping bag and use it as a filling. Ganache thick हो गया है. The ganache has become thick. It has become like a paste. So now I will take this in a piping bag. So here I am showing filling chocolate. In a filling chocolate, the filling remains inside a shell of chocolate. Okay.
तो फिलिंग चॉकलेट में जो फिलिंग होता है वो एक शेल के अंदर रहता है. शेल जो है इट इज मेड ऑफ चॉकलेट. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द शेल. तो सबसे पहले शेल बनाना है. सो दिस इज मेल्टेड डार्क कंपाउंड and I will be doing 3 rows. So just pouring. Now I will wait for some time and then I will demold. मैं थोड़ी देर वेट करूंगी फिर मैं demold करूंगी. Basically here we are making a shell. तो यहाँ पे हम shell बना रहे. So I have poured the chocolate. अब ये रहते रहते थोड़ा सा सेट हो जाएगा, राइट? तो जब मैं demold करूंगी पूरा चॉकलेट नहीं निकलेगा, थोड़ा सा मोल्ड में रह जाएगा. ओके, और वही शेल फॉर्म करेगा. So after some time when I demold, the entire chocolate will not come out. Little bit will be left over in the mold. Okay, so that will form the shell for the filling. तो ये जो shell है, it's like a coating. तो ये थोड़ा सा thick होगा, right? It has to be little bit thick. इसलिए थोड़ा सा वेट करके फिर आपको डिमोल्ड करना है. सो लॉन्गर यू वेट द मोर थिक द शेल विल बिकम. तो जितनी देर आप वेट करेंगे ये कोटिंग और भी मोटा होता जाएगा. सो वी डोंट नीड टू थिक शेल. दैट इज वाई डिपेंडिंग ऑन द रूम टेम्परेचर यू हैव टू सेट द टाइम बिटवीन फिलिंग एंड डिमोल्डिंग. तो आपने जो फिल किया है थोड़ा रख के जो आप डिमोल्ड करेंगे ये टाइम डिपेंड करेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर. आप हाई एसी में काम कर रहे हो तो ये जल्दी सेट हो जाएगा, तो आपको जल्दी इसको डिमोल्ड करना है. अगर आप नॉन एसी में काम कर रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा. इफ यू आर वर्किंग इन एसी दिस विल सेट फास्टर, सो यू नीड टू डिमोल्ड फास्टर. इफ यू आर वर्किंग इन नॉन एसी यू हैव टू वेट लॉन्गर. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी, जो देखना है कि ये एजेस से थोड़ा सा ये मैट होना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो इट विल स्टार्ट टू बिकम मैट फ्रॉम द एजेस एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू डिमोल्ड. सपोज आफ्टर डिमोल्डिंग यू फाइंड दैट द कोटिंग इज टू थिन, देन लेट इट सेट एंड रिपीट द प्रोसेस. तो ये डिमोल्ड करने के बाद अगर आप देखते हो कि कोटिंग बहुत पतला हुआ है तो आप उसको सेट होने दो. उसके बाद ये प्रोसेस एक बार फिर करो. सेकेंड टाइम इतनी देर वेट नहीं करना है, जस्ट एक बार आप पोर करो चॉकलेट एंड डिमोल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली. ठीक है, तो ये डबल कोटिंग आपको करना है अगर फर्स्ट कोटिंग बहुत पतला होता है तो. बट बी वेरी केयरफुल, ज्यादा सेट हो जाता है तो शेल बहुत मोटा हो जाएगा और फिलिंग के लिए जगह नहीं रहेगा. सो इफ द शेल बिकम्स टू थिक यू विल नॉट हैव इनफ प्लेस फॉर द फिलिंग. ओके, सो ये थोड़ा सा थिक हो गया है. सो नाउ आई विल डिमोल्ड. नाउ आई एम डूइंग ओनली 3 rows. ठीक है, सो आई कैन डिमोल्ड डायरेक्टली ऑन द बोल. लेकिन अगर आप full mold करते हो, if you are doing the entire mold, then for demolding what you do is, this is if you are doing the entire mold. Okay, keep an OHP sheet handy. फिर इसको ऐसे करके just take out whatever comes out. जो भी निकलता है आप ऐसे करके बोल में ले लो. Okay, and then just keep it like this. Okay, so all the excess chocolate will come out. ठीक है,
ये बाद में जब सेट हो जाएगा यू कैन जस्ट स्क्रैप इट आउट, ओके। और ये बाहर रख के आपको सेट करना है बिकॉज दिस विल अगेन बी यूज टू मेक चॉकलेट लेटर, ओके। सो नाउ दिस विल गो इन द फ्रिज टू सेट। ये अब फ्रिज में जाएगा सेट होने के लिए। नाउ दिस शुड टेक लेस देन 5 minutes, राइट? ओके, सो ये सेट हो गया है, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू पुट द फिलिंग। अब मैं इसमें फिलिंग डालूंगी। So this is how you should fill. Right, this is how you should fill. ऐसे नहीं कि ऊपर से आप उसको डालो, ठीक है? तो पाइपिंग बैग को ये ऐसे अंदर डाल के आप इसको डालो, ठीक है? So in a circular motion like this. ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है. Should leave some space on top. Okay. So this is how I have filled. Now immediately you can fill up the mold. ठीक है. अभी आपको वेट नहीं करना है. Immediately आप बाकी जगह को मेल्टेड चॉकलेट से फिल कर सकते हो, ओके। मेक श्योर दैट द चॉकलेट इज फुल्ली मेल्टेड. अगर नहीं है देन यू माइक्रो फॉर 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. तो चॉकलेट फुल्ली मेल्टेड होना चाहिए, ओके. सो अगेन आई विल बी पोरिंग द चॉकलेट. Immediately scrap. So let the air bubbles come out. So this is going in the fridge. Now ये सेंटर फिल्ड है और कैविटी का साइज भी बड़ा है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा. These are center filled chocolates and the size of the cavity is also big, so it will take some more time. Also remember, whenever you are doing center filled chocolate, you should choose a mold which has deep cavities. तो आप जब भी center filled chocolate कर रहे हो, ओके, आपको ऐसा मोल्ड लेना है जिसका कैविटी डीप है, नहीं तो आप सेंटर फिल्ड नहीं बना पाएंगे, ओके. So basically you have to hold this mold above your head and see from bottom whether this part has become whitish. ठीक है, तो मोल्ड को आपको बेसिकली नीचे से देखना पड़ेगा कि ये एरिया जो है ये whitish हो गया है या नहीं. whitish हो गया है मतलब chocolate has separated from the mold, मतलब वो set हो गया है, okay. So what you have to do is just this and it should come out, okay. जो नहीं निकलता है उसके लिए हल्का सा आपको ऐसे टैप करना होगा, ओके. अगर टैपिंग के बाद भी नहीं निकलता है मतलब चॉकलेट सेट नहीं हुआ है. सो यू हैव टू पुट बैक इन द फ्रिज.
सो बेसिकली उल्टा साइड आपको देखना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली यू कैन टर्न इट अपसाइड डाउन. इसको ऊपर पकड़ के नीचे से देखना पड़ेगा. ऐसे ऊपर पकड़ के नीचे से आपको देखना पड़ेगा वेदर दिस पार्ट हैज बिकम व्हाइटिश. व्हाइटिश हो गया मतलब योर चॉकलेट इज सेट. देन यू जस्ट टर्न एंड डिमोल्ड. So again you can see the shine.